Hello everybody and welcome to my channel. In this video I am going to continue with the second chapter of chemistry for class 9, chemical changes and reactions. This is our lecture 3. So today we are going to start with the topic types of chemical change. So give the heading types of chemical change. Whenever there is a chemical change, we can definitely represent that chemical change in the form of a chemical equation. कभी भी कोई भी chemical change होता है उसको हम chemical equation के form में लिख सकते हैं. Now there are 4 types of chemical changes that we are going to study in this chapter. The first type of chemical change is direct combination. So first write down the names of the 4 types of chemical changes, then we will discuss one by one each of them. फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. अपना अपना नोट्स बनाते जाओ. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का जो दूसरा नाम है वो होता है सिंथेसिस. ठीक है. द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल चेंज इज डीकॉम्पोजिशन. द थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट. Displacement reaction, and the fourth is double decomposition. Double decomposition. ठीक है, ये चारों प्रोसेस हो गया. चलो अब पहला वाला उठा लेते हैं, डायरेक्ट कॉम्पोजिशन. व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट कॉम्पोजिशन? नाउ एज द नेम सेज कि डायरेक्टली दो चीज़ मिल गए, कंबाइन कर गए, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. कंबाइन कर गए डायरेक्टली. तो एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज कार्बन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज फॉर्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड इन द सेम reaction. So if I look at this reaction, carbon and oxygen, these are the reactants, and only one product is formed, that is carbon dioxide. So directly carbon and oxygen gets combined and carbon dioxide, this is the single product that is formed. Heat is not the product, it is just an energy which is formed in the product. But what matter is formed in the product, that is only carbon dioxide. So this is an example of direct combination or a synthesis type of reaction where two or more substances combine together to form a single substance. Write down this definition of direct combination. It is a type of reaction in which two or more substances they combine together to form a single substance. I hope this is clear. Okay. Now how do we detect that this gas is carbon dioxide gas? It's a very important thing which I am saying right now. हर चीज़ का डिटेक्शन कैसे हम करेंगे? कोई भी गैस अगर हुआ उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड is a colorless gas. We know that how we will detect that this gas is a carbon dioxide gas. Okay, so carbon dioxide gas can be detected by it extinguishes a burning splinter or a burning flame. एक burning flame या burning splinter को extinguish कर देता है. Another example for direct combination only, if you see the next page I am writing, magnesium, this is a magnesium ribbon. If it is directly burnt in oxygen, it will give magnesium oxide. इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पर एक 2 लग जाएगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. वाई? बिकॉज इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है. कैसे क्वेश्चन आता है? गिव द रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन. तुम्हें ये इक्वेशन लिखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. साथ ही साथ एक और इस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व. हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व होता है? इसमें ये ऑब्जर्व होता है कि दिस मैग्नीशियम रिबन जिसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, इट बर्न्स विथ dazzling white flame. This is very important. This is what we will observe, that magnesium ribbon will burn with dazzling white flame. Do not write only white flame. You can write bright white flame or bright white light, but not only white light. And dazzling white light या dazzling white flame is the best one. तो ये तुम्हें लिखना है. और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, नाउ फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं ये बता दूँ, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा
दिस इज ऑब्वियसली अ मेटेलिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज अ मेटल नो डाउट, तो ये जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ मेटेलिक ऑक्साइड्स, एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। यानी अगर हल्का सा मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व कर दूं और फिर मैं लिटमस टेस्ट करूं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। So magnesium oxide is a basic oxide. Actually, any metal oxide is a basic oxide and it turns red litmus into blue. तो ये भी तुम्हें जानना चाहिए, इस बात को भी लिख लो. This is a thing that you should know for your extra knowledge. Okay, so this example is also a type of combination reaction or a synthesis type of reaction. I hope this is clear. Similarly, let us do one more example. Here, carbon monoxide gas, which is a very poisonous gas, mind you. Carbon monoxide gas, but carbon dioxide gas is not poisonous. Carbon monoxide gas is poisonous. It is reacting with oxygen and heat is being supplied. तो इसलिए एरो के ऊपर हमने heat लिख दिया क्योंकि हमने heat किया. Heat is given in this reaction and we are getting in the output, in the product, carbon dioxide gas. इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ एक 2 लिख दिया हमने. Now this equation is also an equation showing direct combination or synthesis type of reaction. 2 or more products, actually here 2 reactants are there, and how many products? Only one product is formed. Okay, similarly one more, sulfur dioxide combining with oxygen directly to form sulfur trioxide gas, and for balancing 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. So these are examples of direct combination. I hope you are understanding it. Okay, now it is not only that only gases are being formed. Sometimes solid is being also formed when two gases react. इसके पहले भी हमने इस equation को पढ़ा था in the previous lecture where two gases are reacting to form a solid. Now you see over here, NH3 is a gas. Which gas? Ammonia gas. It is reacting with HCl gas, hydrochloride, hydrogen chloride, and NH4Cl is being formed. Obviously this is a reaction which is an example of direct combination. Ammonia and HCl are directly combining and forming NH4Cl. Now this was a gas, this was a gas. Ultimately the product which is formed is a solid. So this can be asked in another way also, that give an equation, give a chemical reaction in which change of state is involved. So here gases are reacting and a solid is being formed. This we have already discussed in the previous class. Okay, so this is an example of direct combination or synthesis type of reaction also. Okay, I hope this is clear. Similarly, one more reaction is there in your book, lead sulfide reacting with oxygen to form lead sulfate, PbSO4. Okay, and here 1 2 for balancing. So this is also an example of combination. Now we have almost done a lot of equations for direct combination. Now let us move to the second type of reaction. What was that? Decomposition. Okay, decomposition. नाम से ही पता चल रहा है decompose कर रहा है, मतलब break कर रहा है. That means this is just the opposite of direct combination. Direct combination और decomposition दोनों एक दूसरे का opposite है. तो अभी हम करते हैं. Next type is decomposition, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं. Composition मतलब ही combination. तो अदर in one way we can say direct combination या composition या direct composition, और अभी हम लोग उसका opposite वाला पढ़ने वाले हैं, decomposition, मतलब टूटेगा. So here what happens, let's take an example. Mercuric oxide, HgO, mercuric oxide, this is in solid state, and if I heat this, heat can be written in term, can be indicated by this small triangle. I think you know it. What is formed? Lead is formed and oxygen gas is formed. So lead is a liquid state, तो L लिख दिया, यहाँ पे ये gas है तो G लिख दिया. Okay, now what we are observing, that one single reactant was there, but now products are 2. That means this mercuric oxide is decomposing, is breaking up into 2 or more parts, 2 or more constituents,
and that is lead and oxygen gas over here. So this is an example of decomposition reaction. And now we have used which type of energy to decompose? We have used heat energy. This triangle is showing a heat energy is being supplied. So heat से अगर decomposition हुआ तो उस तरह का decomposition को हम thermal decomposition बोलते हैं. What do we say? Thermal decomposition. So write down thermal decomposition का definition लिख लो. मैं dictate कर देता हूँ. Thermal decomposition is a decomposition reaction that is brought about by heat. If the decomposition is brought about by heat, we will call that decomposition as thermal decomposition. So let's do one more example of thermal decomposition reaction. Okay. So एक और करते हैं. Like potassium nitrate को मैंने उठा लिया, KNO3, and this is in solid state. यहाँ ब्रैकेट में S लिख सकते हैं. चलो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ. We are supplying heat, and now this potassium nitrate will break into potassium nitrite and oxygen gas, that is KNO2. This is also in solid state, and oxygen gas in gaseous state. To balance this, we will use 2 over here and we will use 2 over here. तुम लोग balance अपने से कर लेना. So if I look at this equation, potassium nitrate is breaking up into potassium nitrite and oxygen. So this is also an example of thermal decomposition because we have used heat energy for decomposing. Okay, one more example for thermal decomposition can be written as, next page में लिखते हैं, calcium carbonate CaCO3. This is in solid state. When we heat it at 1000 degree Celsius, टेम्परेचर भी देखो 1000 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, विच इज़ अ सॉलिड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, विच इज़ अ गैस. Okay, so this is also an example of thermal decomposition reaction where this reactant calcium carbonate is decomposing into calcium oxide and carbon dioxide gas when heated at a temperature of 1000 degrees Celsius. Okay, now not always heat is compulsory. Some of the decomposition reactions can be brought about by electric current also. So that is also an important question for your exam. That write a decomposition reaction where electric current brings about the decomposition. So this is the decomposition of water molecule. Water molecule in liquid state. Now when I supply electric current to it, so above the arrow electric current I will write, above and below the arrow electric current, and it will break into hydrogen gas and oxygen gas. So this is also actually a type of reaction which is showing the change of state. Initially a liquid and finally in the product 2 gases. To balance this I have to put a 2 over here and a 2 over here. So this is an example of decomposition where instead of heat electric current is used. Okay, now let us move to the third part of third type of reaction, that is displacement. Now before proceeding to displacement, let me tell you that decomposition का जो topic है जो अभी हम कर रहे हैं ये completely अभी तक complete नहीं हुआ है. Before moving to the details of decomposition reaction, let me discuss all these 4 types of केमिकल रिएक्शंस जो आज हम लोग 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिकम्पोजिशन. इन चारों को मैं पहले डिस्कस कर लूँगा, देन आई विल कम इन टू डिटेल्स ऑफ डिकम्पोजिशन. तो अभी डिकम्पोजिशन का टॉपिक में और डीप जाना बाकी है, बट बिफोर आई डील ऑन दोज टॉपिक्स आई विल कंप्लीट एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ chemical changes. So third type is displacement. Okay, displacement type of reactions. Now displacement नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ भी चीज़ को डिस्प्लेस किया गया है. फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा, इफ सम ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे, हटा दिया गया अपने जगह से, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड. तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ चीज़ को तो हटा दिया गया है बाय सम अदर थिंग. So actually what happens in a chemical change, a more active element displaces a less active element.
from its salt solution, and this happens in case of displacement reactions. So यहाँ पे लिखो इसको displacement reaction क्या है. First definition लिखो. I am also writing. It is a chemical change. It is a chemical change in which a more active element मतलब more reactive element displaces a less active element from its salt solution. देखो ये हो गया definition of displacement reaction. I hope you all are writing. Now if I look at this definition, इसमें क्या लिखा हुआ है? A more reactive element will displace a less reactive element from its salt solution. तो जो more active element है या more reactive element है वो less active element को हटा देगा. और जनरली रियल लाइफ में भी ऐसा होता है. कोई कंपनी में अगर कोई लेज़ी एम्प्लॉई है तो वो लेज़ी एम्प्लॉय ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है. अगर कंपनी को एक ज़्यादा एक्टिव एम्प्लॉय मिल जाता है ना तो वो एक्टिव एम्प्लॉय उसका स्थान ले लेता है और जो लेस एक्टिव है, जो लेज़ी है, उसको हटा देता है कंपनी. सो दिस ऑल्सो हैपन्स इन अ केमिकल चेंज. व्हाट विल हैपन? अ मोर एक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस एक्टिव एलिमेंट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एंड यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा एंड आई विल टेल यू एज आई विल टीच यू, आई विल टेल यू ऑल्सो दैट क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में. तो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज कॉपर सल्फेट CuSO4. इसका एक्वस सोल्यूशन मैंने ले लिया AQ. एक्वस सोल्यूशन मीन्स दिस इज अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज जनरली अ सॉल्ट, लेकिन अगर हम उसको पानी में घोल दिए तो वी विल कॉल इट aqueous solution of copper sulfate. I have taken that and I have reacted it with zinc. Now what will happen? This zinc is a more reactive metal than this copper. ये जो zinc है ना, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को हटा देगा अपना और अपने जाके कॉपर के प्लेस में जिंक बैठ जाएगा. तो इमेजिन इफ जिंक सिट्स इन द प्लेस ऑफ कॉपर, व्हाट विल बी फॉर्म्ड? तो ऑब्वियसली जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा. ये जिंक जाके इधर बैठ गया एंड कॉपर Cu कॉपर विल बी डिपॉजिटेड. तो रेड डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर विल बी सीन इन द टेस्ट ट्यूब एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट. और प्रेसिपिटेट है तो हम एक डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो दे देते हैं बिकॉज प्रेसिपिटेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है. सो इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, इन द रिएक्टेंट साइड देर आर टू रिएक्टेंट्स, इन द प्रोडक्ट ऑल्सो देर आर टू प्रोडक्ट्स. Zinc has displaced the copper and came in the place of copper because zinc is a more reactive metal than copper. I hope this is clear. अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है? इस पर आता है कि what will you observe? इसका ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन आता है. What will you observe when copper sulfate solution is reacted with zinc? तो ऑब्जर्व हम ये करते हैं ना, कलर चेंज का ऑब्जर्वेशन होता है. ये जो कॉपर सल्फेट है इनिशियली, ये जो सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, इसका कलर क्या होता है ना, ब्लू कलर का होता है. दिस इज इन ब्लू कलर एंड लेटर ऑन दिस बिकम्स कलरलेस, क्योंकि जिंक सल्फेट का कुछ खास कलर नहीं होता, दैट इज़ कलरलेस. तो जो ब्लू कलर से वो कलरलेस में चेंज हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑब्जर्व. तो इसका ऑब्जर्वेशन लिखो और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में मार्क कर लो इसका कि दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन, विच सोल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट, विच सोल्यूशन? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स, फेड कर जाता है एंड द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस. देखो, एंड द solution becomes colorless. So ये क्वेश्चन आता है. I hope you have written this. Okay, what will you observe and what is the reaction? दोनों पूछा जाता है, observation and reaction. So moving to the next equation, we are doing displacement right now. So displacement का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. Magnesium is made to react with sulfuric acid H2SO4. Okay,
Acha, one more thing. In the previous reaction, one thing we have missed out. We will also observe one more thing. What we will observe that red deposits of copper will also be seen. देखो यहाँ कॉपर भी ना बन रहा है, तो वो पॉइंट भी यहाँ लिख दो. एट द सेम टाइम रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सेटल डाउन इन द बीकर. यहाँ वो चीज़ भी लिख दो. चलो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं डिक्टेट करता रहा हूँ, तुम लोग लिखो. इसके बाद यहाँ लिखो रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ कॉपर, रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सेटल डाउन इन द बीकर. तो हमें एक रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर भी दिखेगा, तब जाके तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा ऑब्जर्वेशन में. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस इक्वेशन. Magnesium is reacting with H2SO4 and magnesium sulfate is being formed, MgSO4, and one gas H2. Hydrogen gas is evolved. Why? Magnesium is more reactive than this hydrogen. So ये जो हाइड्रोजन है इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा और जाके खुद बैठ जाएगा वहाँ, तो हम बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट. और ये हाइड्रोजन गैस को तो हटा दिया गया, वो अलग से रिलीज़ हो जाएगा. सो सिंपल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. एंड दिस हाइड्रोजन गैस, ये जो गैस है इसको अपवर्ड पॉइंटिंग एरो से मैं डिनोट कर दिया क्योंकि ये गैस है. दिस हाइड्रोजन गैस, इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? हाउ विल वी टेस्ट दिस हाइड्रोजन गैस? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. So hydrogen gas can be tested when a burning matchstick is brought near the test tube, a pop sound is heard. Okay. So how we will detect this hydrogen gas? कि hydrogen gas है, it burns with a pop sound. ये लिख लो, ये confirmatory test of hydrogen है. It burns with a pop sound when a burning मैचस्टिक या बर्निंग स्प्लिंटर, स्प्लिंटर का मतलब अगरबत्ती जैसा, उसको बर्निंग स्प्लिंटर बोलते हैं, जिसमें फ्लेम नहीं होता है लेकिन रेड कलर का वो जलता है, दैट इज़ अ बर्निंग स्प्लिंटर. तो वी कैन राइट बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर टेस्ट ट्यूब. तो जब भी हम टेस्ट ट्यूब के सामने माउथ पर, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास हम एक बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग मैचस्टिक को लाते हैं, अगर पॉप साउंड आवाज़ हुआ, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है. ओके. अब इसका ऑब्जर्वेशन पूछता है. दिस इज द, नाउ वी हैव नॉट डन द ऑब्जर्वेशन, दिस इज ओनली द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन. नाउ हाउ डू वी, व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन? इसका ऑब्जर्वेशन अब हम लिखते हैं. चलो लिखो ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन ये है, ब्रिस्क एफोवेसेंस टेक्स प्लेस. एफरवेसेंस का मतलब मैं ऑलरेडी बताया था. एफरवेसेंस मतलब क्या होता है ना, बुलबुला उठना. तो हम देखेंगे बुलबुला उठेगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस विल टेक प्लेस. क्यों? ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ विच गैस? अभी हमें पता भी है कौन सा गैस इवॉल्व हुआ था. ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, अभी हमने पढ़ा. ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब इस हाइड्रोजन गैस को कैसे मैंने टेस्ट किया, तो वो भी इसी आंसर में इनकॉर्पोरेट कर देना, ऐसे ही लिख के, विच बर्न्स विथ अ pop sound when a burning candle या burning splinter is brought near the mouth of the test tube. लिख लो, is brought near the mouth of the test tube. मैं सिर्फ test tube लिख रहा हूँ. is brought near the mouth of the test tube. So this is what we observe. Okay, I am writing it because I want you also to write down at the same time along with me. Therefore it's important to take down the notes, and these observations are very important from your exam point of view also. The next type of reaction that we will do in this case only, in this displacement type only, is potassium iodide Ki is reacting with chlorine gas. Now if you look at this,
Here this chlorine gas is more reactive than this iodine. Iodine is less reactive. तो iodine को हटा देगा and KCl, potassium chloride, will be formed and this iodine gas will be released separately. To balance this equation, we will put a 2, here we will put a 2. So this is what it is, the reaction. Now what is the observation in this reaction? चलो लिखो, what we will observe. इसका observation ये होगा, the colorless solution, ये जो potassium iodide था, that was colorless initially. The colorless solution टर्न्स, लेकिन बाद में किस कलर में चेंज हो जाएगा? येलोइश ब्राउन, जैसे जैसे आयोडीन अपीयर होने लगेगा प्रोडक्ट साइड में, टर्न्स येलोइश ब्राउन एज आयोडीन अपीयर्स. देखो ये सारे ऑब्जर्वेशंस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत. इसीलिए मैं धीरे धीरे समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा. ऐसे व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन, गिव द केमिकल रिएक्शन. तुम्हें ऑब्जर्वेशन भी लिखना है, तुम्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, देन ओनली विल गेट द फुल मार्क्स. और क्लास में जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसी साथ साथ याद करते रहो. ओके तो चलो मैं तुम लोग को इतना सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दिया कि जो मोर रिएक्टिव सॉल्ट है या मोर रिएक्टिव आयन है वो लेस रिएक्टिव आयन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करेगा. तो यहाँ पे एक चार्ट में तुम्हारे बुक में है, लेकिन मैं बता भी देता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे ज़्यादा एक्टिव है, ये जानना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स का ले लेते हैं. मेटल्स में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो होता है पोटेशियम. सो पोटेशियम दैट इज़ के, सबसे ज़्यादा. उसके बाद आता है सोडियम का नंबर, सोडियम इज़ इन द सेकेंड. उससे कम रिएक्टिव है कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, इसको लिखते रहो. उससे कम रिएक्टिव है जिंक, उससे कम रिएक्टिव है आयरन, आयरन से कम रिएक्टिव है लेड दैट इज़ पीबी. और लेड के बाद अगर हम हाइड्रोजन को इसी ग्रुप में ले लेते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ मेटल, तो लेड के बाद हाइड्रोजन का नंबर आता है. एंड हाइड्रोजन के बाद फिर आता है उससे भी कम रिएक्टिव कॉपर, उससे भी कम रिएक्टिव मर्करी दैट इज़ Hg हाइड्रागायरम मर्क्यूरी, उससे भी कम रिएक्टिव है सिल्वर दैट इज़ Ag, एंड देन गोल्ड दैट इज़ ऑरम, एंड द लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है प्लैटिनम इन द केस ऑफ मेटल्स. प्लैटिनम तो रिएक्ट ही नहीं करता है, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ नोबल मेटल. तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम एंड सबसे कम रिएक्टिव मेटल प्लैटिनम. ठीक है. नाउ लेट अस राइट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में सबसे वी आर ओनली स्टडिंग ओनली दोज विच आर इन आर सिलेबस. ओके तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव नॉन मेटल है वो है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन का नंबर, उसके बाद आता है ब्रोमीन का नंबर, उसके बाद आता है आयोडीन का नंबर. वी आर टॉकिंग अबाउट द हैलोजन ग्रुप. दिस इज़ द हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. ठीक है, ये आई होप तुम लोग लिख लिए हो. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल चेंज दैट इज डबल डिकॉम्पोजिशन. लास्ट वाला, फोर्थ वाला, डबल डिकॉम्पोजिशन. तो यहाँ पता चल रहा है कि डबल मतलब दो बार डिकॉम्पोजिशन हो रहा है. इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डबल डिकॉम्पोजिशन भी बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं. तो चलो एक एग्जाम्पल उठा लिया, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा. इसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है ना कि अगर एक मॉलिक्यूल है AB, एक दूसरा मॉलिक्यूल है CD, तो क्या करेगा ना, ये जो D है, दिस D विल कम इन द प्लेस ऑफ B एंड दिस B विल कम इन द प्लेस ऑफ D. तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, A के पास चला जाएगा D, B हट जाएगा, एंड C के पास आ जाएगा ये B. That means mutual exchange of radicals is taking place. What did I say? Mutual exchange of radicals is taking place. This is also called double displacement reaction, क्योंकि दो जगह displacement हो रहा है. Displacement तो यहाँ पे भी हो रहा है,
डी बी को डिस्प्लेस कर रहा है, बी डी को डिस्प्लेस कर रहा है और एक दूसरे के जगह पे आ जा रहा है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स हो रहा है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। इट्स ऑल्सो नोन एज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 इन एक्वस सोल्यूशन, AQ लिख दिया। दिस इज रिएक्टेड विथ aqueous solution of sodium sulfate NaSO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो हमें क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा कि पहले हम देख लेते हैं क्या होगा एक्चुअली। दिस सल्फेट आयन SO4 जो है ये हटा देगा क्लोरीन को और क्लोरीन उसके जगह में आके बैठ जाएगा, सल्फेट को हटा देगा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम लोग अपने से बताओ, BaSO4 हो जाएगा, यस और नो। SO4 जाके अब Ba के बगल में बैठ गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड दिस बेरियम सल्फेट जो बनेगा ना, दिस इज़ अ प्रेसिपिटेट, इसीलिए यहाँ पे हम एक डाउनवर्ड एरो दे देंगे। इट इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट। और क्या बनेगा एक प्रोडक्ट, Na के साथ क्या आ जाएगा, यस Cl, क्लोरीन आ जाएगा। ऑब्वियसली Na2Cl2 तो होता नहीं है, तो NaCl होगा। सो दिस इज़ द रिएक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स आर टेकिंग प्लेस। नाउ इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन तो मैंने हिंट हल्का सा अभी दे दिया तुम लोगों को। मैंने बताया कि BaSO4 जो फॉर्म होगा ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट होगा, मैंने बता दिया था। तो वही ऑब्जर्वेशन है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसका ऑब्जर्वेशन ही होगा, अ थिक वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। अ थिक वाइट प्रेसिपिटेट, ये एक थिक वाइट प्रेसिपिटेट है। जब भी बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा एज अ प्रेसिपिटेट, तुम यही चीज़ लिखना, किसी भी रिएक्शन में अगर बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ, लिखना अ थिक वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, इट इज़ एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये डिजॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्यूबल है और टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके ये सेटल डाउन हो जाता है। थिक वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, ये मुझे दिखेगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी बेरियम सल्फेट बन रहा है BaSO4, ये लाइन लिख देना, अ थिक वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। दिस इज़ वॉट वी ऑब्जर्व। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है, लिख लिया हो। मूविंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन। देखो याद करते करते चलो, मेरा यही पर्पस रहता है ना कि क्लास में जब मैं यूट्यूब में क्लास ले रहा हूँ या जब मैं स्कूल में भी जब मैं क्लास लेता हूँ, मेरा यही टेंडेंसी रहता है, यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में याद करा दूँ। इसीलिए कुछ चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, तो क्लास में याद करो। नेक्स्ट इक्वेशन है CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका भी मैंने एक्वस उठा लिया, AQ कॉपर सल्फेट CuSO4। इट इज़ रिएक्टेड विथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ गैस, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता देता हूँ जो कि इस रिएक्शन में इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका जो स्मेल होता है, इट इज़ लाइक रॉटन एग्स। ये लिख लो कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट, बाद में कभी इसका यूज़ हो जाएगा, तुम्हें काम दे देगा। द स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज जस्ट लाइक रॉटन एग्स, सड़ा हुआ अंडे जैसा एग्स होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें इस इंफॉर्मेशन का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। तो जब कॉपर सल्फेट को H2S के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो क्या होगा, दिस कॉपर के पास क्या आ जाएगा, ये सल्फ़र आ जाएगा। ये सल्फ़र जाके सल्फेट आयन को हटा देगा और कॉपर के पास जाके बैठ जाएगा, CuS बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, विच इज़ एक्चुअली अ ब्लैक प्रेसिपिटेट। इसको डाउनवर्ड एरो दे दिया क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है। एंड साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, ये जो SO4 है ये जाके अब सल्फ़र के प्लेस में बैठ जाएगा, तो H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा इन एक्वस स्टेट। ओके, सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, सी वी विल ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, हमें एक ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि एक प्रेसिपिटेट बना, उसका कलर ब्लैक प्रेसिपिटेट है। ये जो कॉपर सल्फाइड जो प्रेसिपिटेट बना वो ब्लैक कलर का होता है, तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है उसमें लिखो, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, BLACK, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। मैं PPT लिख रहा हूँ प्रेसिपिटेट के लिए, लेकिन तुम पूरा वर्ड लिखो, पूरा स्पेलिंग लिखो, a black precipitate will be formed. I hope you are understanding. कुछ और रिएक्शंस करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट
reacting with hydrochloric acid, this will also show double decomposition reaction. Chlorine will go in the place of nitrate ion and nitrate ion will come in place of chlorine. You don't draw these arrows, ये मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ. So क्या बनेगा? AgCl, this is the precipitate. I'll tell you the color of this precipitate. This is a curdy white precipitate actually. एंड साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड बनेगा क्योंकि H के साथ क्या आ जाएगा? NO3. So HNO3 नाइट्रिक एसिड विल बी फॉर्म्ड. सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा? अ वाइट कर्डी हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड कर्ड, दही, मतलब दही जैसा गाढ़ा वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. सो कभी भी अगर AgCl तुम्हें दिखे, तुम्हें यही लिखना है, अ कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. जब भी तुम्हें CuS दिखे, कॉपर सल्फाइड, तुम्हें लिखना है ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. जब भी फॉर्मेशन हुआ BaSO4 बेरियम सल्फेट का, तुम्हें लिखना है थिक वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. नाउ हियर AgCl जो बना वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट. सो कर्डी वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना. अगर कर्डी छूट गया, सिर्फ अगर लिखते हो वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, मे बी योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके, अनदर इक्वेशन देखते हैं. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का ही लेते हैं और ये NaCl से रिएक्ट कराता है. इसमें क्या हो जाएगा? AgCl, ये Cl जाके NO3 को रिप्लेस कर देगा और NO3 आके Cl के प्लेस में बैठ जाएगा, तो NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट. नाउ अगेन AgCl इज फॉर्म्ड. तो ये इक्वेशन में भी हमें सेम ऑब्जर्वेशन है, अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. तो लिख लो, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ. AgCl बना तो फिर से वही ऑब्जर्वेशन होगा, अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन. नाउ हियर इफ यू सी BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4. बेरियम क्लोराइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया. ये सल्फेट आयन जाके क्लोरीन के प्लेस में बैठ जाएगा, क्लोरीन आके सल्फेट के प्लेस में बैठ जाएगा. सो BaSO4 बनेगा और HCl बनेगा. बैलेंस कर लो, बैलेंस यहाँ 2 लगा दिया हमने. तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अब तो तुम लोग बता दोगे आराम से ऑब्जर्वेशन, क्योंकि BaSO4 बना है और मैंने ऑलरेडी बताया है जब भी बेरियम सल्फेट बनेगा क्या लिखना है? A white precipitate is formed, a thick white precipitate is formed. इसका ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? A thick white precipitate is formed. बेरियम सल्फेट मतलब यही लिखना है. चलो लिख दो. ठीक है, तो याद हो जा रहा है. मैं एक बार रिवाइज कर दूँ. BaSO4 बनेगा तो थिक वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. CuS कॉपर सल्फाइड बनेगा तो ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. AgCl बनेगा वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. नाउ ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच वी हैव सीन, जहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा था, दीज ऑल रिएक्शंस आर एक्चुअली प्रेसिपिटेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, वेयर टू कंपाउंड्स इन देयर एक्वस सोल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक पार्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि एक्चुअली तो हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा. उसका एक दूसरा तरह का रिएक्शन भी होता है जहाँ प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, उसमें न्यूट्रलाइजेशन होता है. तो अभी हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. प्रेसिपिटेशन तो हो गया है, अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन पढ़ने वाले हैं. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओनली. तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन बिटवीन एनी एसिड एंड अ बेस. एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है, एकदम बेसिक डेफिनेशन है. एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है. Salt plus water is formed. So acid plus base gives salt and water. And this reaction is known as neutralization reaction. बस इतना ही easy है. The reaction between an acid and a base that forms salt and water only salt and water is formed. Then only we will call it as neutralization reaction. तो इसका example कर लेते हैं. चलो एक ही example करते हैं यहाँ पे. NaOH
is reacting with HCl. Okay, this is a base, NaOH is a base, HCl is an acid, so base and acids are reacting. ये जो Cl है ये OH आयन को, हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोक्सिल आयन आके Cl के प्लेस में बैठ जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा. सो NaCl बनेगा प्लस क्या बनेगा HOH तो नहीं लिखते हैं उसको, क्या लिखते हैं H2O. एक्चुअली HOH जो बनेगा दैट इज एक्चुअली व्हाट H2O ओनली, इजंट इट. सो वी आर राइटिंग H2O, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी वाटर बनेगा. So this is an example of double decomposition reaction only, but no precipitate is being formed. So this is not a precipitation reaction, it's a neutralization reaction where salt and water has been formed. Salt need not be only this common salt, it can be any metallic salt. Okay, so this type of reaction is there. Now today we end our class till here only, and only a little bit of our chapter is left. So in the next class I will continue with more of decomposition reactions. More we have to go into deep into decomposition reactions को और ज़्यादा deep में जाना है. And then we will also see neutralization का uses, hydrolysis क्या होता है, and then we will have to see energy change in chemical रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है. ये सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं लेकिन इजी टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर देंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल ऑफ यू स्टे वेल. गॉड ब्लेस यू.